Good morning, students. My name is Dinesh Paramato, and I am a teacher of class 4. Today we will read the chapter 6. The name of chapter 6 is geometry, and today we will discuss the topic 3. Topic 3 in previous classes we have read the types of triangle and open and closed figure. That what are the open and closed figure? What are the types of triangle we have read in the previous classes. Today we will read about the quadrilateral. Quadrilateral, that means a closed figure surrounded by four lines segment. कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्लोज फिगर जो किसी फोर लाइन सेगमेंट से सराउंडेड हो यानी घिरा हुआ हो. As you can see here, this is your closed figure where there are four line segment, first, second, third, and fourth. There are four line segment, and this figure is closed by the surrounded four line segment. That means कहने का मतलब है ये एक क्लोज फिगर है और जो फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. यानी कि क्वाड्रिलेटरल ऑफ शेप क्या होगा कि जब कोई से क्लोज फिगर में हो और फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. एंड द क्वाड्रिलेटरल इज डिनोटेड बाय अ बॉक्स. This is the symbol of quadrilateral. Now we will discuss the properties of quadrilateral. What are the properties of quadrilateral? Quadrilateral के क्या क्या properties होते हैं? Then you can see it has four sides, four vertices and four angles. जब भी कोई quadrilateral होगा तो उस quadrilateral में four sides होंगे, four vertices होंगे and four angles भी होंगे. Okay? As you can see here, एक box है, sorry, quadrilateral है. उस quadrilateral में चार साइड से A, B, B, C, C, D and A, D. That is four sides, four vertices. Vertices, that means when the two line segment join in a point. जब दो लाइन सेगमेंट किसी भी एक पॉइंट पे जॉइन होता है तो vertices कहते हैं. As we read in the previous classes. So there are four vertices. Vertices 1, vertices 2, 3 and 4. There are four vertices and there are four angles, as you can see here. This is the first angle, second angle, third angle and fourth angle. Okay? Now the next is to joining two opposite vertices of a quadrilateral is called its diagonal. कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी दो opposite vertices को, जैसे vertices A and vertices C are the opposite vertices, एक दूसरे के opposite में है, तो जब भी हम किसी vertices A and C को join करते हैं, that means A और C को मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है, that is called diagonal. In the same way, vertices B and vertices D are in the opposite. B and D भी opposite में है, तो जब B and D को मिलाते हैं तो लाइन BD जो है वो एक diagonal बनता है. Now, what are the sides? Sides are AB, BC, CD and AD. We have said AB, BC, CD and AD. Vertices are A, B and CD. A, B, C, D and diagonal are AC and BD. This is line AC and this line BC. These are the diagonals. Angle are angle A, B, C and D. This is the angle A, angle B, angle C and angle D. Technically the properties of a quadrilateral are that it has four sides, four vertices and four angles. The joining of opposite vertices is called its diagonal. ठीक है? समझ में आ गया? Now the next, what are the types of quadrilateral? Quadrilateral के क्या-क्या types हो सकते हैं? The first is we have read first parallelogram. We will read the first is parallelogram. What is parallelogram? Parallelogram, that means we can say when the opposite sides are equal and parallel. That means we have a quadrilateral here A, B, C, D. It will be parallelogram. It will be parallelogram when the quadrilateral ABCD. It will be parallelogram when the sides AB and CD will be equal and parallel. The sides of AD and BC will be equal and parallelogram. कहने का मतलब यही है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD हो उसको पैरेललोग्राम तभी कहेंगे जब उसके ऑपोजिट साइड्स दैट इज AB एंड CD इक्वल हो या पैरेलल हो. Otherwise AD and BC equal हो या पैरेलल हो. That means
opposite sides are equal and parallel, like AB parallel CD, AB parallel CD, and AD parallel BC, AD parallel BC. In the same way, AB equal to CD, AB equal to CD, and AD equal to BC. So, what is the properties of parallelogram? Parallelogram का properties यही है कि एक quadrilateral तभी एक parallelogram कहलाएगा जब इसके opposite sides equal होंगे और parallel होंगे. Now, the next is square. What is square? What are the properties of square? कैसे कोई quadrilateral को कैसे कहेंगे कि square है? हम यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक quadrilateral दिया हुआ है ABCD. ये एक quadrilateral है. इस quadrilateral को square तभी कहेंगे when the all sides are equal and all angles are equal. कहने का मतलब यही है कि किसी भी quadrilateral का अगर AB, BC, CD and AD फोर साइड्स है और फोर साइड्स इक्वल है एंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D ये चारों भी आपस में इक्वल होंगे. Then we will say the quadrilateral is a square. As you can say here, AB equal to BC equal to CD equal to AD and angle A equal to angle B, angle equal to C, angle equal to D. That means कोई भी quadrilateral square तभी होगा जब चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगे और चार एंगल आपस में इक्वल होंगे. That is square. Okay. Now the third type is a rectangle. The third type of quadrilateral is rectangle. What is rectangle? How can we say that a quadrilateral will be a rectangle? Rectangle जो होता है वो कैसे कहेंगे कि कोई भी quadrilateral जो है rectangle है या नहीं है? Then the identity, that is the properties of a rectangle is when the opposite sides of quadrilateral is equal and all the angles will be equal. Opposite sides, that means AB and CD will be equal and AD and BC will be equal. कहने का मतलब है कि opposite sides are equal, all angles are equal. जब किसी भी quadrilateral में opposite side, that is AB and CD आपस में equal होगा and then AD and BC आपस में equal होगा. So we can say AB equal to CD, that is the opposite side are equal, AD and BC opposite side are equal and all angles are equal. तो सीधा सीधा शब्दों में कहेंगे जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होगा और उसके सारे एंगल इक्वल होंगे, दैट विल बी अ रेक्टेंगल. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द सर्किल. व्हाट आर द सर्किल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किल एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्किल. सर्किल, एज यू नो दैट सर्किल इज अ टाइप ऑफ व्हील. एक गोल सर्किल होता है, यानी किसी भी चक्का की तरह जो गोल होगा वो एक सर्किल की ओर होता है. तो सर्किल में क्या होगा कि व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द सर्किल. सो द फर्स्ट इज सेंटर. सर्किल में सेंटर होता है. व्हाट इज द सेंटर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंटर. सो सेंटर दैट मींस अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्किल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ सर्किल. सर्किल जो है वो एक सर्किल है. सर्किल में यहाँ बहुत सारे पॉइंट मिलके एक सर्किल बना हुआ होता है. बहुत सारे पॉइंट रहते हैं एक सर्किल में. तो सर्किल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है. सर्किल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है. एक फिक्स पॉइंट सर्किल के इन सारे पॉइंट के इक्विडिस्टेंट रेडियस के बराबर होता है. एज इक्वल दिस डिस्टेंस दिस वन एवरी डिस्टेंस विल बी इक्वल. यानी कि साफ शब्दों में आता है कि एक पॉइंट है जो सर्किल के अंदर होगा और वो पॉइंट है सर्किल के लाइन से इक्विडिस्टेंस पे होगा. दैट मींस उस पॉइंट से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो सारे लाइन जो है आपस में इक्वल होंगे. दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड अ सर्किल व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट, सॉरी फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ सर्किल. तो कहेंगे कि वैसा पॉइंट जो सर्किल के अंदर होगा और सर्किल से इक्विडिस्टेंस पे होगा. दैट इज कॉल्ड अ सेंटर. व्हाट इज द रेडियस. देन वी विल से अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द सर्किल. दैट मीन्स कि एक सर्किल है, एक सर्किल में रेडियस वही होता है जो एक सेंटर से लाइन तक खींचा गया एक लाइन सेगमेंट होगा. दैट मीन्स सर्किल के सेंटर से जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है सर्किल के दूसरे पॉइंट को टच करेगा, सर्किल के दूसरे पॉइंट से मिलेगा, तो जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस. आई कैन सी हियर दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर O and this is the point of circle A. When you join the OA
that will be the circle, sorry, that will be the radius. That means in this figure radius is OA. जब किसी सेंटर से सर्किल के एक पॉइंट को टच करेंगे, मिड लाइन जॉइन करेंगे, तो वो जो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस. Diameter. What is diameter? The line segment passing through the center and having end points on the circle. कहने का मतलब ये है कि एक सर्किल है और सर्किल के अंदर जब एक लाइन सेगमेंट को सेंटर से होकर पास करवाएंगे, सेंटर से होकर दिस इज द सेंटर, जब एक लाइन सेगमेंट को सेंटर से होकर पास करवाएंगे और ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो सर्किल के दो पॉइंट्स पे एंड हो जाएगा. दैट इज सर्किल का दो पॉइंट है ए बी, सॉरी फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी. जब ये लाइन सेगमेंट को हम ए से बी तक जॉइन करेंगे और जो कि एक सेंटर से होकर पास करेगा, ये सेंटर से होकर पास करेगा, दैट विल बी अ लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड डायमीटर. कहने का मतलब है कि रेडियस के अंदर एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर पास करेगा और एक लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट सर्किल के दो पॉइंट्स पे जाके एंड हो जाएगा, दैट विल बी अ डायमीटर. Fourth, a line segment whose end point on the circle but do not passes through the center. कहने का मतलब है कि ये एक सर्किल है, यहाँ पे भी दो लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, ए बी एंड सी डी. दिस इज ए बी, दिस इज सी डी. तो कहने होता क्या है कि a line segment whose end point on the circle, that is एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों पॉइंट सर्किल के दो पॉइंट्स पे जाके मिलते हैं, इसके दोनों एंड पॉइंट है सर्किल के पॉइंट्स पे है, एंड एक कोड जो है सर्किल के दोनों एंड पॉइंट्स पे जाके मिलेंगे, लेकिन वो जो कोड होगा वो सेंटर से कभी भी पास नहीं करेगा. दैट मींस अ लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट जो है सर्किल पे होगा लेकिन वो कभी भी सेंटर से पास नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड कोड. जैसा कि हम देखें कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्किल पॉइंट्स पे हो बट वो सेंटर से पास कर रहा था, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. जब सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर क्या आएगा, और वही लाइन सेगमेंट जब सेंटर से पास नहीं करेगा दैट विल बी द कोड. इन द सिंपल वे यू कैन से दैट डायमीटर इज द लॉन्ग कोड. डायमीटर का डेफिनेशन वही है कि उसके दोनों एंड पॉइंट अगर सर्किल पे होंगे, कोड का भी डेफिनेशन वही है कि उसके दोनों एंड पॉइंट अगर सर्किल पे होंगे, लेकिन डायमीटर क्या होता है कि वो रेडियस से होकर पास करेगा, कोड क्या होता है वो सेंटर से होकर पास नहीं करेगा. दैट मींस डायमीटर भी एक प्रकार का कोड ही है. दैट विल बी द डायमीटर इज अ लॉन्ग कोड. तो इस हिसाब से डायमीटर जो होगा वो सबसे बड़ा कोड कहलाता है. ओके, नाउ यू गेट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर. दैट इज वी नो what is the radius of the circle, what is the diameter of the circle, and in this topic we will read the relation of radius and diameter. That means किसी भी सर्किल के रेडियस और डायमीटर के बीच क्या रिलेशन होता है. Then as we know that in this circle ON and OM, these are the radius, and as we know that when we draw a line segment from the center to the point of radius, that means कि जब ये सेंटर O है, यहाँ से जब N पे जो लाइन सेगमेंट जॉइन किए वो रेडियस कहलाता है. इन द सेम वे जब O से फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं M पॉइंट पे, ये भी रेडियस है. दैट मींस इन अ सर्किल रेडियस विल बी इक्वल, दैट इज r, दिस इज r, ON इज r, देन OM विल बी आल्सो r. जैसा कि हमने बताया कि एक सर्किल का कोई भी रेडियस आपस में इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं दैट इज ON इक्वल टू OM अकॉर्डिंग टू द रेडियस, OM इक्वल टू OM, और दोनों का रेडियस को r माने हुए हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेड बाय द r. नाउ and as we know that Mn is the diameter because the line segment has passes from the center से पास हुआ है ये line segment Mn, इसीलिए ये जो Mn है ये मेरा क्या हो जाएगा, diameter. Okay, now we will find the relation between radius and diameter. These are the diameter, these are the radius, this is the diameter. Mn can be written as Mo plus On, so we write here OM plus On is equal to Mn. OM, as you know the OM is equal to R, so we write here R, plus ON equal to R, so we write here R. And we represent the diameter by that D. Okay, so D is here is equal to R plus R, that means 2R. R plus R, that means 2R. So we can say that the diameter is equal to 2 times of the
radius. This is the relation of diameter and radius between the diameter is equal to 2 times of the radius. जब किसी रेडियस का दोगुना कर देंगे, रेडियस को दोगुना कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि that is called diameter. This is the relation of diameter and radius. Now we will drawing a circle. किसी भी सर्किल को कैसे ड्रॉ करेंगे? Then we have the two cases: drawing a circle with an object and drawing a circle with ruler and compass. हमारे पास दो केस होता है किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके हम सर्किल को ड्रॉ करना चाहें, और एक दूसरा कि रूलर एंड कंपास के माध्यम से किसी भी सर्किल को ड्रॉ करना चाहें। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से सर्किल को ड्रॉ करना हो तो मेरा ऑब्जेक्ट भी सर्किल के ही जैसा होना चाहिए, लाइक बैंगल्स, कॉइन्स, जो गोल हो। बैंगल्स भी सर्किल टाइप का है, कॉइन्स भी सर्किल के ही आकार के होते हैं। तो बैंगल्स एंड कॉइन्स को हम किसी भी पेपर सेट में रख के उसके चारों ओर पेंसिल घुमा के हम किसी भी सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मींस बाय टेकिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन ड्रॉ अ सर्किल। बट इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्किल विद द रूलर एंड कंपास, देन अगर रूलर एंड कंपास के माध्यम से कोई सर्किल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देन वी हैव द फ्यू स्टेप्स हियर। द फर्स्ट इज इन अ कंपास अ पेंसिल इज अटैच्ड टू द अदर एंड। हम एक कंपास लेंगे, कंपास में दो एंड होता है, एक शार्प एंड होता है और एक दूसरा पेंसिल होता है, यानी कि जहाँ पे हम पेंसिल को अटैच कर सकें। तो स्टेप वन ये होता है कि हम एक कंपास लेंगे, कंपास में लेंगे और उसमें एक पेंसिल को अटैच करेंगे उसके दूसरे एंड पे, दैट इज पेंसिल अटैच टू द अदर एंड। उसके दूसरे एंड पे जहाँ पेंसिल को अटैच करने का जगह रहता है वहाँ पे पेंसिल को अटैच करेंगे। स्टेप टू इज मार्क अ पॉइंट को ऑन द शीट ऑफ पेपर। फिर किसी एक पेपर के शीट में एक पॉइंट मार्क करेंगे, जिस पॉइंट को हम लोग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहला काम कि पेंसिल को अटैच कर देंगे कंपास में। दूसरा क्या होगा कि एक पेपर लेंगे और पेपर में एक पॉइंट दे देंगे, अब पॉइंट का नाम दे देंगे O। ठीक है, द थर्ड स्टेप इज टेक द रूलर एंड मार्क 1.5 सेंटीमीटर विद द शार्प एंड एंड द पेंसिल एंड ऑफ द कंपास। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप मेरा ये होगा कि हम एक रूलर को लेंगे और रूलर से फिर एक सेंटीमीटर लेवल से डिस्टेंस को मार्क करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस मेरा 1.5 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, आई डोंट नो विच वन टू टेक। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूलर लेंगे। थर्ड स्टेप में पहला काम रूलर लेंगे। रूलर लेने के बाद उस रूलर में पेंसिल कंपास के शार्प एंड से और पेंसिल एंड से, यानी दो एंड होता है, शार्प एंड होगा, एक पेंसिल एंड होगा, क्योंकि हम उसे पेंसिल लगाए हुए हैं तो एक पेंसिल एंड हो जाएगा। तो एक शार्प एंड को और पेंसिल एंड के माध्यम से हमको एक डिस्टेंस को मार्क करेंगे, लाइक हमको यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर को मार्क करना है। जैसे कि हमें देख सकते हैं कि ये रूलर है, रूलर पे मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये 0 से ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास के क्या करेंगे कि एक शार्प एंड को यहाँ रखेंगे और एक पेंसिल एंड को यहाँ पे। ठीक है, एक रूलर है जो मेरा 1.5 सेंटीमीटर का हो, तो कंपास से आप इसे कहेंगे कि शार्प एंड इसको यहाँ रखेंगे और एक पेंसिल एंड जिसमें पेंसिल लगाए हुए हो उसको एक एंड को 1.5 सेंटीमीटर के एंड पे रखेंगे। दैट मींस बाय द शार्प एंड एंड बाय द पेंसिल एंड वी कैन मार्क द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर बाय द कंपास। ठीक है, दैट आर द थर्ड स्टेप। नाउ द फोर्थ स्टेप वी प्लेस द शार्प एंड ऑफ द कंपास एट पॉइंट को मार्क लेने के बाद हम क्या करेंगे, जिस पेपर पे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट किए हुए थे उस पेपर पे कंपास के शार्प एंड को रख देंगे। उस पॉइंट पे कंपास के शार्प एंड को रख देंगे। शार्प एंड पे रखने के बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 मेक द कंप्लीट रिवॉल्यूशन विद कंपास। फिर शार्प एंड को पॉइंट 4 पे रखने के बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट 4 पे रख देंगे, फिर शार्प एंड के माध्यम से कंपास को पूरे एक राउंड तक घुमा देंगे। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाएंगे बाय द कंपास। जब एक चक्कर लगा देने के बाद हम देखते हैं कि मेरा एक सर्किल तैयार हो जाता है। तो किसी भी रूलर एंड कंपास के माध्यम से सर्किल को कैसे ड्रॉ किया जाए? देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज कि कंपास के दूसरे एंड पे पेंसिल को जॉइन करते हैं। सेकंड इज एक पेपर ले लें और पेपर में एक पॉइंट को ड्रॉ करें। थर्ड इज कि रूलर ले लें, रूलर के माध्यम से किसी भी कंपास के लिए एक डिस्टेंस को मार्क करेंगे। डिस्टेंस को मार्क करने के बाद उस शार्प एंड को पेपर में लिए गए पॉइंट पे रख देंगे और पॉइंट पे रखने के बाद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंपास के जरिए दे देंगे। फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब कंपास के जरिए हम ले लेंगे तो हमको दिखेगा ये सर्किल रेडी हो चुका है। ओके,
So by this we can draw a circle by the object and by the ruler and compass. By this topic we complete the chapter 6. Now next day we will be continue from the next chapter. So till then, thank you.